देखिए बचपन बहुत अच्छा गुजरा। हमारे ज़माने में हमारे फादर हमें घर के अंदर उस ज़माने में कैरम बोर्ड, चेस और लूडो ये गेम्स ला के दी हुई थी। और एक तोता भी रखा हुआ था घर में उन्होंने। तो गर्मियों के मौसम में हम सब बाहर सोते थे, तोते को भी बाहर रखते थे। तो जब हम तो सब उठ जाते थे, तो कई बार वो धूप में रह जाता था, तो मेरे मदर कहते हैं वो मुझे आवाज़ें मारता था। मेरा नाम रुताश है ना, तो वो बोलता था ताश, 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 मतलब सूरज गर्मी हो गई है मुझे अंदर करो। तो फिर हम उसको अंदर ले जाते थे, ये बचपन में। वैसे तोता बात करता है। तोते के साथ बातें करो तो। My journey with RUTASH started when I was commissioned a film by the Narula family. Each film is a unique journey. Some journeys are more fulfilling than others. आशीष, तूने जो बचपन में कमरा देखा था वो बहुत बड़ा लगता था। This फिर अचानक was one such journey. मैं बड़ी होगी, मेरी शादी में हुई तो मैंने वो कमरा देखा, मैंने ये कमरा। Finding the motive is the key before you undertake any journey as a filmmaker. Yeah, what is the motivation for the film? The thing is, every life is a unique life, and every life is a different life. I have seen my mother-in-law in our lives for about 45 years, all my married life, in and out, and I've seen. So I found lots of uniqueness in her persona, her experiences, her way of tackling life, which I thought is a very interesting journey for her to share with others. And so it's almost like, I would say, my initial thought was to call it Celebrating RUTASH, because that's how I viewed it at Srina and me when we were discussing. So we came to this way as something to be celebrated. मैं सारा दिन देखती रहती हूँ। वो एक जगह है, वहाँ पे कबूतर रात को वहाँ आ जाते हैं काफ़ी, तो पता नहीं 20-30 पता नहीं कितने आ जाते हैं और सुबह निकल जाते हैं। तो उनके ऊपर जो ईगल है वो ऊपर उनके चक्कर लगाती रहती है। पता नहीं उनके बच्चों को खाती है कि उनके क्या करती है। सारा दिन उनका यही। अब दिन के टाइम कोई कबूतर नहीं है, सब बाहर गए हैं, शाम को आ जाएंगे। और ऊपर काफ़ी ऊपर ईगल घूमती रहती है, मैं उन्हीं को देखती रहती हूँ फिर, और क्या। ये दुनिया का तो नक्शा ही बदल गया। पहले ये रिक्शा खुद चलाते थे, लेकिन अब बिल्कुल कारों की तरह उसके आगे लग गया है और रिक्शा वाला बैठता है, एक छोटी सीट बन गई है उसकी, वो बैठता है उसमें। और जो साइकिल के पहिए से ना, उसकी जगह पे छोटे छोटे टायर लग गए। दुनिया बदल गई। ये अच्छा करा उन्होंने, तो बेचारे को
साइकिल चला के 2-2 सवारियां बैठती थी, वो देखती रहती हूँ। दुनिया ही बदल गई। कंस्ट्रक्शन इतनी हो रही है कि अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है, कोठी रही कोई नहीं गई। हमारी तो कोठी है ना, मेरे सामने अपार्टमेंट बिल्डिंग है, यहाँ कोठियाँ थी पहले, अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है। तो दिल्ली का नक्शा ही बदल गया, शायद जगह नहीं रही लोगों के रहने की, अपार्टमेंट बिल्डिंग बन रही है। Indeed, the world had transformed in the last 90 years. But fundamental human nature has still remained the same. The Treaty of Versailles was a winner's prize, and humiliation for the losers. Post World War I, Europe's dominance over the world was waning. America was emerging as the new global leader, shifting the balance of power. The tremendous crowds which you see gathered outside the stock exchange are due to the greatest crash in the history of the New York Stock Exchange in market prices. The 1929 Wall Street crash was a pivotal event that set the wheels of World War II in motion. But then, on October the 24th, 1929, Wall Street crashed. The worldwide depression that followed hit Germany hardest of all. With some satisfaction, Hitler realized his day had come. Such contentment. Never in my life did I feel such contentment. To see hard reality open the eyes of so many millions of Germans deceived for so long. In 3 years, German production halved. Thousands of small businesses collapsed. Unemployment rose to 6.5 million. 17 million, a third of the population, was supported by the dole. In the face of depression, and with democracy on the point of collapse, the German people looked for new solutions. Into this confusion, the Nazis emerged as something new. मेरा जन्म तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है। वो मेरा जन्म हरिद्वार हुआ था। हरिद्वार ना हमारे हिंदुओं में सारी लोग जाते हैं, जब वो हड्डियाँ होती हैं ना उनकी, जब जलाते हैं हड्डियों को लेके, तो वहाँ जाते हैं हरिद्वार। तो मैंने कहा लोगों की हड्डियाँ गई हैं, मेरी हड्डियाँ हरिद्वार से आई। हरिद्वार में उन दिनों में मेरी माँ ने पिलग्रिम पे जाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसकी भाभी ज़बरदस्ती ले गई उसको। कहती है जहाँ तुम्हें टाइम आएगा, क्या मेरी माँ कहने लगी लोग बोलेंगे, मैं छठा अपनी माँ का 6th बच्चा था, तो उसने बोला कि लोग पागल बोलेंगे ये कैसे क्यों आ गई, इतना बच्चा पेट में है और ये, लेकिन उसकी भाभी ज़बरदस्ती। 6 दिन मुझे नहला के तो वो मसूरी ले गई उसको। 13 दिन की जब मैं हुई तो मसूरी से कहने लगे अब वापस लाहौर जाना है क्योंकि हमारा जगह है। फिर वहाँ पहुँचे तो 21 दिन की हो गई मैं। 21 दिन के बाद वहाँ से चले तो खेमकन पहुँचे, तो 40 दिन की मैं खेमकन आई। सो मैंने कहा मेरी माँ ने मेरे पैर में ऐसा चक्कर डाला है कि अभी वैसे ही कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी इंडिया चक्कर लगता रहता मेरा। आजकल तो बस मैं इस उम्र में ज़्यादा लेटी रहती हूँ, थोड़ा बहुत चलती हूँ। जब कोई
पानी वगैरह पीती हूँ या कोई चक्कर लगाती हूँ, उसको पकड़ के अपने आप अकेली नहीं मैं चल सकती, उसका कंधा पकड़ के फिर चलती हूँ। बहुत मुश्किल है वो। अब तो बच्चों को मैं जब बात करती हूँ तो कहती हूँ भगवान को बोलो अब हमारी दादी को उठा ले। दादी अब बहुत सफ़र कर रही है, बहुत बहुत मुश्किल हो रही है। पापा जी आपके वो तो इन्हें पुलिस में थे और मम्मी जी हाँ, घर पे ही वो शौकिया पुलिस में उनको कराया था, ज़रूरत नहीं थी क्योंकि बहुत बहुत बड़े लैंडलॉर्ड थे वो, बहुत ज़मीनें थी उनकी। तो उन्होंने कहा कि ये अगर इधर घर में रहा ज़मीनों के ऊपर तो ये इसकी आदतें ख़राब हो जाएंगी, ड्रिंक बहुत करेगा। इसलिए ज़बरदस्ती उनको पुलिस में उन्होंने अच्छी जॉब इंस्पेक्टर की पुलिस में कर दिया। क्योंकि मेरे जो ग्रैंडफादर थे उनको मेडल मिला हुआ था, वो पुलिस में उस ज़माने में अंग्रेज़ों का यहाँ रूल था, तो कोई भी इंस्पेक्टर से ऊपर इंडियन को नहीं बनाते थे वो पुलिस में। मेरे दादाजी जो थे वो पुलिस में इंस्पेक्टर तक पहुँचे। तो मेरे फादर को उन्होंने जॉब, क्योंकि उनकी बहुत सुनते थे क्योंकि बड़े ऑनर से ना वो, कि वो तू क्या तहसीलदार बनना चाहता है कि पुलिस में। तो मेरे फादर कहते मैं पुलिस में जाऊंगा क्योंकि वो यूनिफॉर्म पहनते हैं। तो उन्होंने उसको पुलिस, मेरे फादर को पुलिस में करा दिया। Me and Mamiji, as I referred to her, we developed our own little routines. Short, half an hour, and then she would tire out. I was amazed at her ability to recollect events of her entire life, as if it was just yesterday. एक मेरे से 2 साल बड़ी बहन है ना मेरी और मैं, हम दोनों को वो जो बड़ी बहनें थी ना, जो सबसे बड़ी थी वो, और जो उससे 3 साल छोटी थी वो बड़ी बहन, उसका नाम राज था, जो 2 साल बड़ी थी, उसको देखती थी। और अब मेरा नाम रुताश था, मेरे उससे जो छोटी थी 3 साल, वो मुझे देखती थी। क्योंकि उनके 8-8 बच्चे होते थे, तो इसलिए जो बड़े बच्चे होते थे कई बार वो अपने बच्चों को उनके हवाले करते थे कि तुम संभालो इनको, क्योंकि उनकी गोद में दूसरे छोटे बच्चा होता था। तो हमें फिर मुझे वो नंबर 2 बहन थी, उसने संभाला। तो जो सबसे बड़ी थी बहन, उसकी मैंने बातें सुनी है, लेकिन उसका मुझे याद कुछ नहीं है, बिल्कुल मैंने कुछ नहीं मुझे याद। मैंने बातें सुनी थी उसकी कि उसका जब 15 से 16वां शुरू हुआ तो उसकी शादी हो गई। तो जाते ही उसको 2 बच्चे 1 साल में, साल के बाद 2 बच्चे हुए। तो लेकिन उसको निमोनिया हो गया, तो निमोनिया से वो मर गई, बच्चे भी मर गए, वो भी, वो सबसे बड़ी बहन। तो मैंने उसकी बातें सुनी है, मैंने देखी नहीं है कभी, क्योंकि मैं तो सारी 1.5 साल की थी जब वो मर भी गई, तो मैंने नहीं देखा उसको।
मेरे से 2 साल बड़ी बहन थी, बड़ी नौटी थी, शरारतें करती रहती थी, लेकिन मैं शरारती नहीं थी बचपन में उसकी तरह। तो उसने मेरे फादर की थर्मोस तोड़ दी, पता नहीं कैसे उससे गिरी या कुछ हुआ, तो उसने नाम मेरा लगा दिया। अब मैं बहुत छोटी थी उस वक्त, सारी 3.5 इतनी होंगी उम्र की, तो उसने नाम मेरा लगा दिया। उन्होंने पूछा किसने तोड़ी है, उसने कहा इसने तोड़ी है। तो मुझे कहती है, मुझे पहले से इन्फॉर्म करती है, कहती है चाचा जी, हम फादर को चाचा जी बोलते थे, अगर चाचा जी पूछेंगे किसने तोड़ी है तो तुम कहना तो मुझे नहीं मालूम। तो मैंने ऐसे ही बोला, क्योंकि मैं छोटी थी बहुत, वो उम्र थी कि जो कोई बोल दे तो वही बोलना, उसका पढ़ा दे तो वही बोलो। तो मैं 3.5 इतनी होगी, तो मुझे उसने बोला तुम बोला मुझे नहीं मालूम किसने तोड़ी है। तो जब फादर ने उससे पूछा कि किसने तोड़ी है, तो उसने ज़रूर बोला होगा कि मैंने तोड़ी है, लेकिन बड़ी होके भी वो ये झूठ बोलती रही मेरे साथ, कहती नहीं मैंने उनको बोला था मैंने तोड़ी है। तो मैंने अगर तुमने ये बोला होता कि मैंने तोड़ी है तो थप्पड़ मुझे क्यों आता। मेरे फादर ने, मैं 3.5 साल की थी, पहली बार एक थप्पड़ मारा कि मेरी बोतल क्यों तोड़ दी है। तोड़ी उसने थी, नाम मेरा लगा दिया। तो बचपन में मैं ये आपको बोलूँगी, जनरेशन जो आजकल की है, कि बचपन में बच्चे का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है अगर फादर कोई उसको चपेट मारे या कुछ। इसलिए किसी बच्चे को प्यार से बोलो बेटा ये मत करो, कभी डांट के नहीं बोलो बच्चे को, क्योंकि बच्चा जो है ना वो बहुत डर जाता है और उसका कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है बिल्कुल। लेकिन मेरा तो कॉन्फिडेंस, जब मैं स्कूल चली गई तो स्कूल में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया। तो स्कूल में तो बहुत नाम कमाया मैंने, स्कूल में बहुत, अपने टीचर्स मेरी बहुत पसंद करती थी, क्योंकि मैं अपने पढ़ाई में भी होशियार, स्पोर्ट्स में भी होशियार, बहुत स्पोर्ट्स में मैं बड़ा पार्ट लेती थी। और जब स्पोर्ट्स का, तो जो मेरे से 2 साल बड़ी है वो तो घर में भी मदर के पास बैठी रहती थी और मैं उछलती कूदती थी इधर उधर लेकिन वो बैठी रहती थी। और स्कूल में भी उसने ऐसे ही करना, जब हमारा गेम्स का पीरियड होता था शाम को गेम्स का, तो मैंने तो उसमें जो गेम्स होती थी खेलती थी, और वो कोई ना कोई बहाना बना के ना मेरे पेट में दर्द हो रही है तो बैठ जाती थी, गेम भी नहीं खेलती थी बिल्कुल। बहुत आराम तलब थी वो। शहर में हम रहते थे सियालकोट, वो अब पाकिस्तान में चला गया, लेकिन जब मैं बचपन था मेरा तो वो इंडिया एक ही था, क्या सियालकोट में हम थे, रह रहे थे। तो मैं 10-11 साल की थी, तो वहाँ पर सियालकोट में हमारे पास सब, उस ज़माने में गाड़ियाँ नहीं होती थी, टोंगे होते थे, जो घोड़ा खींचता था उसको, उसके टोंगे के व्हील्स होते थे, एक आगे सीट होती थी एक पीछे होती थी, और घोड़ा खींचता था उसको। तो मैं उस टोंगे में स्कूल जाती थी, और मेरे जो बड़े भाई थे, 2 काफ़ी बड़े थे, वो भी उसी टोंगे में बैठते थे, और वो लड़कों के स्कूल में जाते थे, हम इकट्ठे जाते थे, भाई भी और हम 2 बहनें। As I listened to her stories, I began to feel a stronger connection to the geopolitical events that shaped her life
and the lives of millions of others. बहुत मुझे लग रहा है हमारे रिलीजन मानते हैं कि एक सतयुग था, एक द्वापर था, एक त्रेता और एक कलयुग। आज तक कलयुग है। अब तो बस दुनिया बहुत बदल गई देखते देखते। बस आपस में लड़ाइयाँ, एक मुल्क दूसरे से लड़ाई कर रहा है, बस लड़ाइयाँ चल रही हैं। अब उधर रशिया में और उसमें यूक्रेन, उसके लिए झगड़ा हो रहा है। मेरे को लग रहा है थर्ड वॉर शुरू होने वाली है। थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाली है। सेकंड वर्ल्ड वॉर तो देखी है ना मैंने, शायद अब थर्ड हो जाए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर देखी है आपने? हाँ, वो तो थी, उसे तो मैं टीनेजर थी। Exploded over the nation in 1940 when the Nazis lashed out for valuable Scandinavian ports. Unprepared, Norway was soon overrun. The German occupation was violently resisted by a strong Norwegian underground that gave great assistance to the Allied cause. The European power struggle quickly became a global conflict. It pitted different factions against each other. Greed and hatred fueled the war. Слава, утвердившая мир на руинах столицы Третьего Рейха, столицы войн, смерти и рабства. The Americans, who had been silent spectators and weapons suppliers, eventually intervened with deadly consequences, testing their next generation weapon technology and killing millions of innocent people in the process. On August 15th, 1947, the great symbol of the British Empire came down for the last time to be replaced by the banner of the new Indian government. To secure independence, the Hindus had with great reluctance accepted partition. Pakistan was established for the Muslims, a minority group who refused to be ruled by Hindus. Trouble was inevitable in the Punjab, where the dividing line left a large minority on each side. Large areas of cities were destroyed and hundreds of villages. Here, in another district, Muslim refugees, their homes burned and looted, prepare to seek shelter within the borders of Pakistan. Out on the Lahore Road, the pathetic cavalcade... In the aftermath of the Second World War, the political landscape changed dramatically. The old colonial world order collapsed. India also gained its independence. The British colonial rulers left, however, not before dividing the country and creating a new geopolitical flashpoint. उन दिनों में पाकिस्तान कोई नहीं था, सारा इंडिया था। तो पाकिस्तान बनने वाला था, पार्टीशन होने वाला था। एक तरफ इंडिया, पंजाब, एक तरफ पाकिस्तान। तो मैं उस टांगे में, मैं उस वक्त बहुत बड़ी हो गई थी, कॉलेज में पढ़ रही थी, तो मैं टांगे में बैठी हुई थी। तो मैं कॉलेज अपना एग्ज़ाम का रिज़ल्ट देखने गई कि रिज़ल्ट क्या निकला मेरे। तो मैं अपने कॉलेज के बाहर अभी खड़ी थी, टांगे में बैठी हुई थी। मेरा जो भाई था उसके बाल नहीं थे, तो जो मेरा धनोई था आगे बैठा, मेरी बहन, बड़ी बहन का हस्बैंड, वो सरदार था। उसने
पगड़ी पहनी हुई थी। तो उनको लोगों को पता लग गया कि ये लड़की हिंदू है। तो मुसलमानों की जीप वहाँ से जा रही थी, तो उनकी जीप मुझे दूर से दिखाई देगी, क्योंकि उसके ऊपर फ्लैग लगा हुआ था मुस्लिम लीग का। तो पहले तो जीप तेज़ थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो गई। जैसे ही अभी कुछ दूर, थोड़ी दूरी थी मेरे से, तो एक आदमी खड़ा हो गया ताकि मुझको पकड़ के तो उसमें डाल ले और मुझे किडनैप कर ले। लेकिन मुझे टाइम पे पता लग गया, मैं छलांग मार के तो दूसरी तरफ हो गई टांगे के। तो मेरे बहनोई को जब टांगा हिला तो कहते क्या हुआ? मैंने कहा वो देखो मुझे ले जा रहे थे। कहने लगे कि तू तो बच गई। तो ये हुआ मेरे साथ कि मैं किडनैप होने से बच गई, नहीं तो मुझे वो उठा के ले जाते तो पता नहीं फिर मर जाती, क्या होता क्या नहीं होता। तो मैं बच गई इससे। कि मेरी मदर इन लॉ बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन वो भी ये ज़्यादा इनमें से मारे गए। वो जब पार्टीशन हुआ ना, मेरी मदर इन लॉ भी मारी गई, मेरी सिस्टर इन लॉ भी मारी गई। काफ़ी 13 मेंबर फैमिली के उस जब मुसलमानों ने मार दिए जब पार्टीशन हुआ, जब पाकिस्तान बना और इंडिया। बस ऐसे ही है। इनके क्या कह सकते हैं, इनके फायदे नुकसान के, इसमें इतने लाखों लोगों का नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। बहुत हो गया। आपको ऐसे नहीं लगता अगर उस टाइम ये पार्टीशन हुआ नहीं होता तो आपकी पूरी जिंदगी अलग होती शायद से? बिल्कुल। The egos of the power brokers overrid the free will of the masses. What followed was chaos, bloodbath, and confusion. Amidst all this chaos, RUTASH, who had just stepped into a youth, was married. उन दिनों पार्टीशन अभी हुआ नहीं था, पाकिस्तान और इंडिया इसकी अभी लाइन नहीं बनी थी कोई, लेकिन आपस में मारकाट कर रहे थे मुस्लिम और हिंदू आपस में बहुत। जब मेरी शादी हुई तो मेरी शादी में जो ड्राइवर था वो मुस्लिम था। तो जब मुझे बाराती जो थे, मुझे अपने घर लेके जाना था उन्होंने, तो बस में सारे बैठे हुए थे। तो जब जा रहे थे तो रास्ते में वो बस का जो पेट्रोल होता है वो ख़त्म हो गया। तो वो जो ड्राइवर था वो पेट्रोल लेने के लिए गया। तो जो ओल्ड पीपल, बुजुर्ग बैठे हुए थे बस में, वो सारे कहने लगे कि ये मुस्लिम है इसलिए हेल्प लेने गया है हमें मारने के लिए, आप सब लोग उतरो और गांव, जैसे कोई गांव आए तो उधर चले जाओ। तो जैसे ही सारे उतर के, बस से उतर के तो उधर जाने लगे, तो सबसे पहले पुलिस स्टेशन आ गया। सो फिर मेरी जो पहली रात होती है वो पुलिस स्टेशन में गुजरी, क्योंकि हम थे तो सरदार, लेकिन मेरे साथ मेरा भाई था और मेरे हस्बैंड थे। तो दोनों के बाल नहीं थे, दोनों ने बाल और दाढ़ी नहीं रखी हुई थी बिल्कुल। तो उन्होंने, जो सरदार थे पटियाले के, वो हमारी ट्रेन में चढ़ गए। उन्होंने समझा ये मुस्लिम है। तो फिर जब ट्रेन में चढ़ गए तो मैं समझ गई, तो वो समझने लगे कि ये मुस्लिम है। तो मैंने तो थोड़ा सा आवाज़ें मारनी शुरू कर दी। मेरे भाई का नाम था धर्मपाल सिंह। मैं ऐसे ऐसे आवाज़ें मारने लग गई ताकि उनको पता लग जाए कि हम हिंदू हैं या सरदार हैं।
मुस्लिम नहीं है, सरदारों को पता लग जाए। जब सरदारों को पता लगा फिर मैंने उनको ये बताया कि हमारे तो मुसलमानों ने मार दिए हैं, हमारे रिश्तेदार 13 लोग हैं हमारे जो घर के मारे हैं इन्होंने। तो फिर वो जो सरदार था वो रोटी लेके आया वो था अपने लिए, वो हमें भी कहने लगा ट्रेन में, कहता आप भी खाओ। मेरा दिल नहीं भी कर रहा था लेकिन फिर भी मैंने थोड़ी सी खाई कि इसका दिल रखने के लिए। इस तरह हमने अपने आप को बचाया ट्रेन में, नहीं तो वो तो हमें मुस्लिम समझ के मार देने लगे थे। We all want to be free and our free will to be respected. But the irony is, we do not want to respect the free will of others. Whether it is partition or it is marriage, that is the fundamental truth. लेकिन मैं चाहती थी कि मैं बीए कर लूं, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरी शादी को बोली कि नहीं, बीए नहीं, इसकी शादी करनी है, लड़कियों के लिए बहुत पढ़ाई हो गई बस। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरे 3 महीने रह गए बीए में सारे, तो शादी के बाद कर लूँगी। तो मेरा बहुत मन था पढ़ाई के लिए, मुझे नहीं पढ़ने दिया आगे। तो मेरे ज़माने में कहना मानना पड़ता था, अब क्या किया जाए। तो मुझे उन्होंने, मेरी जो ख्वाहिश थी कि मैं लेक्चरर बनूंगी ज़िंदगी में, फिर प्रोफेसर ज्योग्राफी की, नहीं बनने दिया। उन दिनों में मर्जी नहीं मिलती थी। एक बात तो मैंने बोल दी थी, वो जो डेट रख रहे थे ना, वो मेरे एग्ज़ाम वाले दिन की डेट रख रहे थे। ठीक है। बड़ी हिम्मत करके दरवाजे के पीछे खड़े होके, तो मैंने कहा अगर आप यही डेट रखोगे तो मैं तो हॉस्टल में हूँ, तो मैं शादी के लिए नहीं आऊँगी, तो आप किसकी शादी करोगे, इसलिए डेट चेंज कर दो। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम है उस दिन डेट नहीं रखो शादी की, आगे पीछे करो। बस वो करवा ली। उस पुराने ज़माने में ऐसे ही चलता था। आजकल तो होता है, मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन के सामने अपने आप लड़कियाँ ढूंढ लिया। तो ये अच्छी बात है। और क्या, सही बात। अब मैंने गोवा से दिल्ली जाना है, तो पता नहीं सिर्फ 2.25 घंटे प्लेन में रहना है, तो मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। 2.25 घंटे में आप दिल्ली पहुंच जाओगे। शायद से एक बार आपको ऐसे नहीं लगता कि आपको अपने सभी ग्रैंड चिल्ड्रन को मिल लेना चाहिए, ऐसे नहीं लगता? या उन्हें आपको मिलने आ जाना चाहिए? वो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन तो कहते हैं आप लंदन पहुंच जाओ तो हम मिलने आएंगे सब, तो मेरे में जान ही नहीं है, दिल्ली पहुंच जाऊं तो बहुत है। The long drive and the coolness of the AC car meant the ever-active Sono caught a few wings on the way to the airport. Mummy ji, however, was wide awake. Every milestone in the journey she cheered. The closer she got, the better she felt. She just wanted this journey to be done with. So too me, Mummy ji and the airport officials squeezed our way through the sea of people. While I was busy filming people, in a bit to pass time, Mummy ji started sharing stories with her co-passengers. Oxygen masks are stored overhead and will automatically drop down if the cabin should depressurize. क्या पता क्या लिखा हुआ है, फ्लाइट में बनना लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है, कोई पता नहीं। जब पैदाइश पैदा हुई मैं जाके वहाँ हरिद्वार में एक सराय में, तो क्या पता है मौत का कहानी है, क्या पता प्लेन में आनी है, कुछ पता नहीं, इंसान कुछ नहीं कह सकता। Life is like this escalator, always moving in one direction.
Our end is predetermined but certain. So was our journey that day. चेंज है, बहुत चेंज है दिल्ली में, बड़ा फर्क है। दिल्ली में तो जब अभी दिल्ली बना नहीं था, प्लॉट थे यहाँ पे, पहले प्लॉट बनाए उन्होंने। यहाँ तो खेती बाड़ी होती थी, वो भी मैंने देखी है। यहाँ अब दिल्ली बन गया ना, ये न्यू दिल्ली बन गया, इसका नाम न्यू दिल्ली है, ओल्ड दिल्ली है। We crisscrossed through the legendary Delhi traffic and finally reached home. Mummy ji was now tired for the day. Sonu, on the other hand, was active and back to her daily routine. After exploring my surroundings and capturing them through the eye of my camera, I too was tired for the day. ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨੌਲੇਜ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਬੈਸਟ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, BA ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਲਮੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੀ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸੋਏ ਪੇਕੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਸਨ, ਲਾਈਫ ਦਾ ਲੈਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ? ਬਗਾਵਤ ਤੇ ਸਭ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਇੰਨਾ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਗਾਵਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਦੇ? ਹਾਂ, ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਰਿਫਿਊਜ਼। that means circumstances ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ almost slave ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦਾ, ਕਿ ਰੁਤਾਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਗੋਲਸ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਉਹ ਜਿਹਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ ਨੂੰ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣ ਲਈ। ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਉਹੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਵੱਡੀ, ਉਹਨੇ ਉਲਟੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਦੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ, ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਫ ਦੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਆਓ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਮਾਈ ਥਿੰਕਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਕਦਮ ਦਿੱਤਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਥੋੜੀ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਦੀ ਦੇ ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਗ੍ਰਸਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਭੈਣ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਬਣੀ। ਮੰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਜੇ ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ 6 ਸਾਲ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਰਕੜਨਾ। ਉਹ 120 ਸਾਲ ਦਾ
ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸਨ ਟੀਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 120 ਸਾਲ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝੇਲ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 120 ਸਾਲ, 100 ਸਾਲ 6 ਸਾਲ ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਮੈਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੇਲਾ 120 ਸਾਲ ਦਾ ਬੈਠਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਾ ਮਰਾ ਮਰਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਰਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਮੰਮੀ, ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਬਿਨੂ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਰਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ। ਹਾਂ ਉਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਓਲਡ ਲੇਡੀ, ਹਾਂ ਮੰਮੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 70 ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਨੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡ ਚਿਲਡਰਨ ਦਾ उड़ीकते ने तोता उड़ीकते ने प्यार। आपका जो ये है In the evening, Mummy ji was all set for the big fat Punjabi wedding. From the narrow bylanes of South Extension, our car entered the rush hour traffic of Delhi. भाई दिल्ली के ट्रैफिक के बारे में क्या बोलूं, जैसे केजरीवाल से दिल्ली की सरकार नहीं चल रही उसी हिसाब से ट्रैफिक का भी हाल है। बहुत Well, Naresh, our driver, was busy cursing the traffic constantly. I was quietly enjoying the chaos and madness of Delhi. The usually chirpy Sonu was surprisingly quiet today. It was then I found out her marriage had been fixed, and this were her last few days in Delhi. If we compare an Indian wedding to a yummy cake, the Punjabi wedding is the cherry on top. If the modern Punjabi Bhangra music does not get you moving, I don't know what will. Mummy Ji's eyes lit up. She was soon the center of attraction in the marriage. Relatives were surprised to see her, and everyone was trying to get her blessings. I had not seen her this happy in my entire time with her. Tired and late, Mummy Ji decided to call it a night. Why? I carried on filming. नेहरू प्लेस नागपटनगर हवाई आशीष ने बोला हाँ जी आशीष हाँ जी उसका बस चले तो आपके चारों ओर कैमरा लगा के रखे है। वो ड्रोन है ना, जो ड्रोन रखे आपके आसपास। आशीष जो लड़का है वो नानी जी पे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है ना। अच्छा हाँ जी। The next day, Meenu, Sonu's replacement, had arrived. Sonu was helping Meenu catch up on the daily timetable. पानी पी लो नानी पहले। अरे पानी पी लो। It
was my second last day in Delhi. This was the last I saw of Sonu. I was sad to see her leave, but happy that she has started a new phase in her life. हो गया। सोनू तो चली गई, अभी आपको कैसे लग रहा है? हाँ, बड़ा अजीब लग रहा होगा। वो नेचुरली अब समझ गई थी मेरी मेडिसिन और सब कुछ। अब नहीं है, ये समझ जाएगी ये भी ऐसा ऐसा। नानी चलेगी लेके मिल गई थी मुझे यहाँ पे। Meanwhile, the new caretaker of Mamiji had now taken charge. इधर आ जा। मीना इधर आ। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें 2 भाई। बहन बड़ी है? हाँ। भाई भी बड़े हैं? नहीं, मुझसे छोटे हैं। दोनों छोटे हैं? हाँ। वो तो पढ़ते होंगे। हाँ, छोटे वाला पढ़ता है, बड़े वाले ने पढ़ लिया, 1 साल हो गया स्कूल छोड़े। अच्छा, वो जॉब कर रहा है कुछ? जॉब नहीं कर रहा, वो घर का ऐसे काम, टेबल कुर्सी अलमारी ये सब करता है। बनाता है? हाँ, मेरे ताऊ करते थे ना ये काम। अच्छा, कारपेंटर? हाँ, वही काम करता है। घर पे ही सीखा था उसने। अच्छा। हाँ। तो बहन बड़ी है कि छोटी? बड़ी है मुझसे 1 साल। तो उन्होंने पढ़ाई खत्म कर ली कि ये सेकंड ईयर कर रही है। ये कर रही है? हाँ, वो काम भी करती है, पढ़ाई भी करती है। वेरी गुड। हाँ। कहाँ पे उधर तुम्हारे है उधर बीए का? बीए नहीं आई है दिल्ली में। ऑनलाइन कर रही है? नहीं, दिल्ली में? हाँ, ऑनलाइन जाती है? नहीं, ऑनलाइन करती है। और काम भी कर रही है? काम किसी घर में कर रही है? हाँ। अच्छा अच्छा, पढ़ भी रही है। आपको भी पढ़ना चाहिए ऑनलाइन। क्यों? हमेशा पढ़े। मैं तो घर पे, मैं अभी तो मेरा 3rd ईयर में हो जाता बीए। मैं मम्मी के साथ तो रहती हूँ ना, कभी कभी मम्मी की तबीयत खराब रहती है तो सब काम करती हूँ मम्मी के साथ। खाना बनाना, खेत में जाना, गाय भैंस संभालना, सब करना पड़ता है मम्मी के साथ। हर एक डिफरेंट लाइफ है। हाँ। जो उसके हिसाब से इंसान करता है सब। हाँ, लेकिन जब तक आप नानी जी के साथ हो तो पढ़ो, क्योंकि नानी जी तो बहुत पढ़ना चाहती थी। हाँ। मतलब आप यहाँ पे हो तो नानी जी के ख्याल भी रख लोगे, थोड़ा अपना भी पढ़ाई करो। हाँ, कर देखती हूँ अभी, मम्मी को पूछती हूँ ना। क्यों नानी की मर्जी, हर एक की मर्जी सही। वो दे देगी मेरे को, वो मेरे पॉपुलर है ना उधर, बिल्कुल यूनिवर्सिटी है ना, तंग कर रही है, बिल्कुल ही सौ सकती। फिर सवेरे आधा घंटे देते घंटे पानी देना, आधे घंटे में कोशिश कर रही है 5-5 मिनट सौ जाए। तो सारे कर दी हो ठीक है, खोल दे सारा, खोल दे, खोल के ना। हाँ ऐसे खोल के, ऐसे नहीं छोड़ दे, ऐसे ही ऐसे। ओके मम्मी, ओके हो गया टाइम। हाँ पहुंच के गर्ल्स पहुंच के ना, कैसे लगा? अच्छा, सर्दी लग गई है, कोई पता मेरा ब्लड प्रेशर डाउन। ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕਰਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ, ਇੱਕ ਦੋ ਜਣਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੁਕਾਨ ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਹੈ ਆਲ ਸਾਈਨ। ਓਕੇ ਓਕੇ, ਬਾਏ ਬਾਏ। ਨੰਬਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ अपॉइंटमेंट लेना। हाँ मैं नंबर दे दिया, जो नरेश का जा रहा है
उन्हें कहा जाना है। Surina Narula, the daughter of RUTASH, was leaving to London to be with her family. Before she left, I wanted to interview her. The backdrop being a candid conversation I had managed to record. उस टाइम Most of my intriguing conversations were off the घर का camera. भी काम करना हाँ This, however, was one conversation I managed to capture. सबसे बड़ी बेटी का नाम क्या था? मैंने कभी पूछा नहीं आपसे। उर्शिया उर्शिया। उर्शिया वो मदद करती थी आपको। ये उसका काफी तो बहुत फर्क था, 6 साल का फर्क था विनीत से आपस में। बहुत प्यार करती थी छोटे बच्चों को, अपने बहन भाई छोटे। उसके मरने के बाद बीनू को तो बहुत बुरा हाल हुआ था विनीत का, बहुत फील कर रहा था, बहुत प्यार करता था। रात को सोता नहीं था, सो नहीं सकता था उसके मरने के बाद। कभी ऐसे फील नहीं हुआ आपको कि शायद से अगर हम लोगों ने उसको अमेरिका बुला लिया होता, उसकी बात मान के बुला लिया होता तो ये सब नहीं होता? वही ना, ये तो आजकल दिन रात होता है मुझे। कई बार मैं कहती हूँ शायद मुझे जो सज़ा मिल रही है इसीलिए मिल रही है क्योंकि ऊपर नहीं है, नर्क स्वर्ग इधर ही है, हेवन और हेड। सही। लेकिन उस टाइम आप तो उसको लेने के लिए तैयार थी ना, मतलब, या फिर आपके पति ने बोला कि नहीं लड़कियों ने एडजस्ट करना चाहिए? उसमें आपकी भी क्या गलती है? बस गलती करी ना, उन्होंने मेरे को चिट्ठी ला के दे दी, मैंने फिर लिख दिया कि नहीं आओ, यहाँ मुश्किल है आना। सो खुद तो वो चले गए 82 के, और मैं तड़प रही हूँ इसीलिए कि मैंने चिट्ठी लिखी उसको, नहीं लिखनी चाहिए थी। एक बार मेरे ग्रैंड सन ने पूछा मुझे कि नानी जी अगर आपको ये ज़िंदगी जो है दोबारा मिले तो, लेकिन उस वक्त मुझे अगर दोबारा मिले ना, जो कुछ इस लाइफ में मैंने किया ना मैं बिल्कुल उल्ट करूँगी उसके। इस लाइफ में गलतियाँ ज़्यादा करूँ, बहुत गलती करा, बहुत बड़ी गलती। लेकिन आप भी तो इंसान हो ना, आप थोड़ी ना भगवान हो कि आप ये सोच के आपने जानबूझ के तो नहीं की, इसीलिए तो गलती कहते हैं उसको। क्या कर सकते हैं? हाँ, लेकिन रिग्रेट भाइयों को प्यार करो आपस में, भाइयों का, लेकिन अपने बच्चों से ज़्यादा नहीं। ये अपने भाई को मेरा ख्याल बुलाना चाहते थे, जो इनसे बड़ा था ना भाई, इसलिए उसको मिल गया। ऐसे ही है, जो ऊपर लिखा हुआ है ना कोई नहीं मिटा सकता। कोई नहीं मिटा सकता। उसको फांसी दिलवाई थी और फिर कहते थे कि इंडिया में वो लास्ट फांसी थी, उसके बाद फांसी नहीं देते। अब फिर वो जो लड़की जिसके साथ जुल्म हुआ है वो कह रही है ना उन लड़कों को फांसी दो, क्योंकि फांसी उसके बाद बंद हो गई थी। आप ऐसे मत सोचिए कि आपको
पापों की सजा मिल रही है, ये अच्छी बात नहीं है। अगर वो जहाँ भी हो, अभी तो रब को प्यारी होगी है, लेकिन वो जहाँ भी हो आपको देख के उसको बड़ा दुख होगा अगर आप ऐसे सोचोगे तो। नहीं सोचना चाहिए इंसान। आपने भी सोचा नहीं था ये सब हो जाएगा। ये किस्मत कराती है। उसका रिश्ता तो इतने लोग मांगते थे, जो जिसका भी बेटा लायक होता था, डॉक्टर या इंजीनियर बनता था, वही मांगता था रिश्ता उसका, लेकिन गलत जगह दे दी। आपने दिया या आपके पति जी ने दिया? आपने दिया या हस्बैंड ने दिया? किसने सिलेक्ट किया था? ये रिश्तेदारों ने किया था। अगर ये देख लेते ना, लड़के को देख लेते ना एक बार भी, कभी रिश्ता नहीं करते वहां, लेकिन ये देखने ही नहीं गए। करो जो किस्मत। शादियाँ उस वक्त अरेंज मैरिजेज होती थी, अरेंज करते थे। बड़ी लड़की की शादी बहुत गलत जगह कर दी, अरेंज करी। वो लड़के वाले बहुत बहुत बुरे निकले, बहुत ही ज़्यादा। सास ग्रैंड मदर उसकी बहुत तंग करती थी उसको, तो उसने हमें चिट्ठी लिखी। हम तब तक अमेरिका पहुंच गए थे कि अमेरिका मुझे भी बुला लो। उसके फादर को पता नहीं क्या हुआ, वो कहते हैं नहीं अभी नहीं, लड़की को कोशिश करनी चाहिए अपने ससुराल में रहने की। लेकिन उसके इन लॉज बहुत गंदे निकले, बहुत बहुत बुरा व्यवहार करा उसके साथ, और उसको बस ख़त्म कर दिया उन्होंने, मार मुर के बस कुछ दे के। तो उसको बड़ी वो मुझे बहुत याद आती रहती है आजकल। मेरी जो छोटी बेटी है उसके बाद ये उससे 9 साल छोटी थी, ये छोटी बेटी बड़ी बेटी से 9 साल छोटी है। तो इसने सारा काम संभाला और सीबीआई को केस दिलवा के पूरा उनको जस्टिस दिलवाया, उसको फांसी पे लटकाया। As we were talking about her perspective in life, that if she had an opportunity, she would change everything in her life. What is your thought about that? And what is your thinking regarding this? I think it's sad when people become victims of the circumstances. And sometimes it does happen. People become very bitter of whatever is happened. They always assume it's happening to them. I don't think life is so simple. I think it happens to everybody. All kinds of things happen to most people. And, either you become strong, or to begin with, it again depends on your upbringing also. Sometimes you are sort of cotton-wooled and kept in sort of, cocooned in a space. So when you're suddenly thrown out to the world, you cannot handle quite a bit of the things. And you become a victim and you start thinking of only negative stuff that has happened to you in your life. Of course, losing a child is the worst thing, that trauma that can happen to any parent. And my mother went through that. And she would like to change that. And I can totally understand that one aspect, that she wishes that her daughter hadn't died, which I agree with. Nobody wants her child to die. But to say that one event caused her death,
her not getting along with her husband at an emotional level caused that, or if she had written a letter differently, it wouldn't have caused that. That I don't believe. I don't believe anything she could have done would have altered what happened to my sister. So, yeah, I mean, when I sit with her, it's all about regrets. Even the good part of her life, which she's lived for the last 30, 40 years. She's traveled the world, she's been to cruises, she's been on private boats, yachts, planes, everything. But nothing seems to satisfy her because her past is bigger than her present. And that's something we can all control, I think, because we all are also passing through life. We are not here permanent owners of this life, or, that we are not going to die. So if she's 94, I'm also 60 something. I'm not going to be, alive for too long. So I have to live this life and enjoy it. So I don't subscribe to a lot of things now with her, because also getting old makes you weaker. So you do start thinking negative stuff. But if you change, supposing she were to change, supposing one little thing she says, okay, if I wish I hadn't done that, but then something else would have happened. So it's not black and white that you can go back and change that one instant. It's like a butterfly effect. It'll change a whole number of things. Me personally, if my sister had not died, I wouldn't have become who I am today. It's a horrible thing to say, but perhaps the strength I got because my parents didn't have the strength, my brother didn't have the strength, and I had to fight and I had to come out and I had to meet all kinds of people, made me the person who I am, made me go out there to the world and try and change it, made me get on to street children work, women's rights, environmental rights, everything, because it somewhere deep down it angered me that we were living in a country where these women didn't have rights, children didn't have rights, there were a lot of things wrong, and unless we change these things, nothing is going to happen. So each individual must do something about what's going on around us. That's how I learned a lesson after my sister's death. That how could she have gone through so much and nobody really noticed anything or saw anything. I came across her journey by discovering how she had died because I was pursuing it. And I was meeting all kinds of people on my sort of travels to find out what had happened to her. Going to the Home Minister, going to Ranchi, sitting in a taxi and the taxi driver telling me that, you should have told us, you shouldn't have come to Ranchi. We would have cut up that man who killed her and brought his parts to you. I mean, he said, you should have given me 20,000 rupees, maine kar dena tha. What kind of a place? And it's true in Ranchi in those days, I'm talking of the 80s, the things were bad in Bihar. And people I was told they could do that. So I was horrified and shocked what I saw as I went along. So perhaps I wouldn't have, been exposed to that world or anything or made an effort to do anything about anything. So I don't know. I mean, things happen. They shouldn't happen to any parent, I agree, or any sibling. But, I mean, you can't keep lamenting what has happened. You have got to find strength and move on. So basically, if something doesn't kill you, it makes you stronger. I mean, it's just on the lighter side. So. In the decade after World War II, America rose to prominence. The American dream became a reality for many. 2, 1. Boost to ignition and liftoff of Discovery on a bold new era of spaceflight between... While America and its allies rose to space and beyond. For every American, this has to be the proudest day of our lives. The rest of the world was consumed by terrorism and proxy war, often fueled by the American geopolitical interest.
मेरा बेटा गया था पहले, उसको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गई थी। तो तब हम इंडिया में थे, तब हम थे, हाँ, तो तब फीस बहुत ज़्यादा थी, लेकिन फिर हमने उसको 2 फीसें तो भेजी उसको, 3 चाहिए थी ना, 3 सेमेस्टर, तो एक का फिर उसने लोन लिया वहाँ से, तीसरी का। तो वो जब पढ़ाई ख़त्म करी तो वो कहने लगा अब मेरे को जॉब जो है ना यहीं पे लेनी है जॉब। पहले तो मुझे टेम्परेरी मेरे कॉलेज में ही मिल गई थी थोड़ी सी जॉब, लेकिन अब वो क्योंकि मैं सिटीज़न नहीं हूँ तो इसलिए मुझे अब जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि वो जो टेम्परेरी आया वो तो उसको कहते हैं ये तो चला जाएगा। तो इसलिए अगर मम्मी आप आ जाओ इधर, उसने लेटर लिखा, अगर आप इधर आ सकते हो, क्योंकि मेरी सिस्टर गई हुई थी वहाँ की, तो उसने मुझे स्पॉन्सर किया, तो मैं उधर चली गई अमेरिका। फिर मैंने अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर किया, वो भी आ गए। फिर वो वहाँ गए तो उनका वापस आने को दिल ही ना करा, तो वहीं सेटल हो गए उधर अमेरिका में। वहाँ का कल्चर मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि तब तक वो फ़ोन वगैरह बन चुके थे ना उधर। नहीं तो पहले तो एक ही फ़ोन होता था, वो ऐसे ऐसे करके कान को लगा के वो, और ये हैंड फ़ोन नहीं बने थे। तो और भी उधर जाके नई चीज़ें देखी मैंने। कार में बैठे होते थे, बंद करके दरवाजे उसके, तो वॉश हो जाती थी। वो ऐसी जगह बनी थी, उसके अंदर जाते थे तो बाहर से बारी वॉश हो जाती, साफ़ हो जाती थी। और फिर वो दूर से ही ना ऐसे अपनी दबाते थे तो वो दरवाज़ा खुल जाता था। ये चीज़ें मैंने वहाँ नहीं देखी जाके अमेरिका में। मैंने कहा ये तो वो बिल्कुल कहानियाँ सुनी हुई थी, सिमसम खुल जा तो ये तो उस तरह खुल जाता है दरवाज़ा अपने आप। बस बहुत कुछ देखा। वहाँ जाके ड्राइविंग सीखी कार। तो जब मैं उसके पास गई इंटरव्यू के लिए, कहते हैं इतनी लेट क्यों सीखी आपने? तब मैं 50 की थी जब सीखी, 50 मेरी यही थी। मैंने कहा चांस मुझे अभी मिला सीखने का, तो क्योंकि मैं वो गियर वाली कार नहीं चलाना चाहती थी। इधर गियर वाली कार थी, हमारे पास थी तब उस वक़्त कार, वो गियर वाली थी। वहाँ देखा मैंने ऑटोमेटिक है, तो मैंने ऑटोमेटिक वो सीख ली, तो काफ़ी साल चलाती रही। अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को कहीं भी कहते थे टॉय से हमने टॉय ख़रीदना है, ले जाती थी उनको। कभी कभी स्कूल छोड़ के भी आती थी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। काफ़ी घुमाया मैंने अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को। और ये मेरी बेटी ने भी मुझे सारी वर्ल्ड का चक्कर लगा दिया, कोई जगह नहीं है देखी हो। इस ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा। बस अब तो मैं तकलीफ़ें मुझे इतनी हैं कि मैं दिन रात कहती हूँ मेरे लिए दुआ करो कि भगवान मुझे उठा ले, बस। जिंदगी में याद रखेंगे आपको कि हाँ आशीष जी मिले थे। It was nearly 2 months since my last visit in Delhi. मारे गए वो जब पार्टीशन हुआ ना, मेरी मदर इन लॉ मारी गई, मेरी सिस्टर। Time was passing by and I was behind schedule. I was still struggling to find an end for my film. तो ये मुस्लिम है
I was informed Mummy Ji was finally leaving to London. This was the perfect end I could ask for. खुश हो कि आप जा रहे हो अपने ग्रैंड चिल्ड्रन से मिलने? हाँ, यही मांगती हूँ कि लंदन तक पहुँच जाऊँ बस। अरे ऐसा क्या आप आराम से पहुंच जाओ। दिल्ली पहुंच गए तो लंदन क्यों नहीं? दिल्ली तो रोज रहती हूँ, दिल्ली तो काफ़ी, दिल्ली ज़्यादा रहती हूँ या गोवा जाती थी दिल्ली से। काफ़ी देर हो गई है लंदन, लंदन से आई है, काफ़ी देर से लंदन नहीं गई। और सब ग्रैंड चिल्ड्रन आपको मिलना है वहाँ? वहाँ मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन कह रहे हैं आप जैसे ही वहाँ पहुँचोगे मैं वहाँ पर आ जाऊँगा। वो पोता मेरा और मेरी एक पोती, ग्रैंड डॉटर एंड ग्रैंड सन, दोनों कहते हैं आप इधर लंदन आ जाओ तो हम फौरन मिलने आएंगे लंदन। देखो तो वहाँ तो वो तो बाहर से मिलने आएंगे, तो ऑलरेडी ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन लंदन में है, वो छोटे छोटे, मेरी 4 साल के और दूसरा 2 साल तो होगा, और जो लड़की पैदा हुई है वो 6-7 महीने की है। 6-7 वो मनद है ना इनका, मैडम का बेटा मनद, बीच वाला बेटा, ये बच्चे उसके हैं, उसके बच्चे। बाकी अभी छोटा भी नहीं है, उसका बच्चा नहीं है अभी कोई, और जो बड़ा है उसका भी अभी कोई बच्चा नहीं। ये बीच वाला जो है ना उसके बच्चे हैं। अच्छा। लेकिन बच्चे दूर नहीं गए, और अब उन्होंने जो लड़के पसंद करे हैं, लड़के एक का तो अमेरिकन ही है, तो अब वो मुझे सब उस पे दिखाती हैं फोटोस मोबाइल पे। भाई ये आपको मैं दिखाती हूँ, मेरा सेल कहाँ है, और ये उसका जो जिसके साथ शादी करेगी, अमेरिकन है। अमेरिकन है। अब उधर जो जाते हैं इंडियन से थोड़ा सा शादी करते हैं, लेकिन अच्छा है कि अब खुद अपने आप ही चुन रहे हैं। हाँ, ये है थोड़ा एक दूसरे की नेचर एकदम नहीं ना चुन लेती, पर नेचर पर देखनी है। अच्छा है, अच्छा माँ बाप की जिम्मेवारी नहीं रहती। एक बार आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को मिलोगे ना, बस आपका पूरा ख्याल अलग हो जाएगा। बस उनको मिलने के बाद भगवान, मेरी अंदर की आत्मा भी कह रही है कि अब मेरे बाहर निकलने दे, कैद करा हुआ है पिंजरे में, लेकिन भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। शाम दी। हाँ हाँ हाँ, बैग ਕਿਹੜੇ ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮ ਦੇ ਬਣੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਸਟਮ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀਗਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ, मेरा बंदा लग गया हुआ है, मैं हुने पूछ रहा हूँ बेटा वो क्या हुआ जो नानी जी के वो थे आने बैग्स 9:30 PM आज रात आ जाने मम्मी हूँ 2 घंटे ओहो मम्मी छोटी चीज की। अच्छा मैं दूसरा की ਕੀਤਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੀ। ਓਹ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨਦੇ। ਫਿਰ ਲਈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਰਸੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੈੱਡ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹਾਫ ਬੈੱਡ, ਉਹਦੇ ਲੈਗਸ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਕੈਨੀਕਲ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਸੇ ਬੈਟਰੀ ਚ ਹੀ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਚ ਬਟਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ, ਮਕੈਨੀਕਲ ਹੈਗਾ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ, ਸੋ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਵਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਰਾਏਪੁਰ, 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਾਣਾ ਡਿਨਰ ਭੇਜ ਦੇ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਡਿਨਰ ਖਾ ਦਾਂ, ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੈਗ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਕ? बैग पैक हो गए? एक तो बैग हो गया, तो दूजा जो लिक्विड चीज़ां पाउंदियां ना
ਉਹ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਲਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਲਾਈਟ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਕਰ ਠੀਕ 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 ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰ ਦਿਓ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਰਾਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂਗਾ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਕਰੋ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਹੈਗਾ ਮੰਮੀ, ਸਵੇਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਪਰ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਜਾਏਗਾ ਸਭ ਕੱਢ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਲਾਉਂਜ ਚ। ਚਲੋ ਮੰਮੀ ਮੈਂ ਚੱਲਣਾ ਜਰਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਲੇ ਆ ਜਾਏ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ यही है ठीक है हाँ निकाल यही है ठीक है बिल्कुल ठीक है बस सवेरे नहाना जरूर मैंने भाई एक डब्बा खोल ले अभी ये क्या होगा ये सवेरे पढ़ूंगी सब ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਕੱਲ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ लंदन जाना है। आ रही आवाज आ रही कि नहीं? वो करती है कुछ इधर दबाती है आवाज। हाँ आवाज एक सेकंड नहीं हाँ कहो मैं पहुंचे होने हाँ हाँ बिल्कुल मैं बैग ही कट रही सा बैठ के रात नू मैनू HS ने कहा कि बैग आ गए ने तुहाडे कस्टम तो बड़ी मुश्किल काफ़ी मुश्किल होनी पर मैं छुड़ाते ते थैंक गॉड अज आ गए ने। कल शायद मैं जाना है इथों, अजे मैनू पता नहीं लगा किन्ने, मैं क्या मैनू दस दिओ घरों किन्ने बजे निकलना है। रात की फ्लाइट है ना ते प्लेन भी जाना है। नंदनी लैके जा रही है नाल मेरे, नंदनी हाँ ते वो जूली ने अरेंजमेंट किया ना, वो फ्रेंड है ना नंदनी हाँ बहुत चंगी है कुड़ी। ओके हाँ चल देखो वाहिगुरु ने पहुँचाता तो 8:30 जनवरी जी जर्नी है 8.5 घंटे की। देखो जो वाहिगुरु का हुक्म होया तो पहुँच जाऊँगी ठीक उत्थे रस्ते को कट कर 8.5 घंटे। चलो ठीक है दुआ करो मैं लंदन पहुँच जाऊँ, उत्थे जाके जो होना हो जाए। हाँ ओके चल बहुत अच्छा है। चलो ओके 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 कोई नहीं मैं सुते हो नहीं अखा मार अच्छा कितने हो गए बिल का फोन आया? बिल का फोन तो नहीं आया सवेरे? नहीं सुबह ही किधर आना। अच्छा ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ये आएगा चलो एक तो एक भावे से ना आएगा। ਆਨੇ ਉਹ ਸੁਰੀਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੁਰੀਨਾ। ਮੰਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੂਰਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। आज पता करना है राइट। ਮੈਂ ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਘੰਟੇ कितने बजे निकलोगे? ਬਿਲਕੁਲ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਗੋਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਕਿਧਰੋਂ ਆਏ ਹੋ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸੀਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਨਾ ਵਾਕ ਕਰਕੇ ਆਨਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਟਿਕਟ ਦਾ हाँ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੀ ਸੁਰੀਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੰਦਨੀ ਦੋਨੋਂ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਸੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੋ ਇਕਨੋਮੀ ਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਥੱਲੇ ਕਰੋ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਕਰੋ ਸੀਟ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਓਕੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਉਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦਾ ਫਲਾਈਟ ਦਾ, ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤੀ
मंगलवार सवेरे ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਫਲਾਈਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਰਾਤੀ 2:45 ਤੇ ਚੱਲੇਗੀ सोमवार सोमवार राती मंगल सवेरे है आज की बात आज शनिचर कल इतवार परसों अच्छा बस परसों रात को चलेगी हाँ कितने बजे मतलब रात 12 बजे तो बाद चलेगी 2:45 अच्छा तो सवेरे ਤੁਸੀਂ पहुंच जाओगे कितने बजे निकलना है तो समझो 11 बजे ठीक है 11 पहुंचोगे 11 बजे सोमवार हाँ रात को रात हाँ अच्छा रात 11 बजे रात घरों निकलना हाँ क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਰਾਤੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ मेरा मतलब थी कि रात रुपए ਵਿੱਚ हाँ रात ही हो गए ना मम्मी 11 बजे गए हाँ जी पहुंचोगे सवेर के टाइम 6 बजे 6-7 बिना ट्रैफिक दिखा पहुंच जाओ ठीक है मैं एक मिनट नंदिनी को पूछ लेना आप करोगे तो मैं उसको अभी कर रहा हूँ पहले भी ना बिटवीन कम्युनिकेटिंग एंड ऑल वो फ्लाइट्स सोल्ड आउट हो गई आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई वॉज थिंकिंग सुरीना इज डूइंग एंड सुरीना वॉज थिंकिंग आई एम डूइंग नहीं 18th आफ्टरनून 2 बजे है आज नहीं है टुमारो मंडे 2 बजे no she wants to take the night on Monday night so which is like 7 hours 8 hours later yeah okay so I'm going to give the go ahead for that yeah okay क्योंकि दिन को खाना पड़ेगा ना कुछ she says she is not comfortable I'm sorry to bother you with this कुछ भी नहीं नजर आ रहा मेरे को सामने हाँ I'm trying to accommodate her बेटा फैन तो ऑन कर दो big purpose is that दिमाग है नहीं ठीक है ठीक है thank you so I'm going to as I talk to you I'm going to press the button for Kapil to purchase right okay thanks okay मम्मी हो गया मैं परचेज ले भी कहता हूँ नंदनी नाल भी गल कर ਲਈ जिन्हें नाल जाना है ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही ठीक है ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਨੇ ਕਰਨਾ हाँ ਉਹ ਫਿਰ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਇਆ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ ਕਿ तो 11 ਵਜੇ ਨਿਕਲਣਾ है 11 निकले 11:30 पहुंचोगे 12 बजे इमिग्रेशन करके हाँ दान सिंह को बुलाओ मैं उनको कहता ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही रहेगा सारी पैकिंग ठीक है फिर बाकी देख रहे हैं फिर और कुछ तो नहीं चाहिए हाँ गोवा में भी लगाते हैं मास्क अभी तो बहुत कम लगाते हैं इतना ज़्यादा नहीं अच्छा अभी कम हो गया धीरे धीरे यहाँ भी कोई नहीं लगाता कोई लगाता है अब लोग परेशान हो गए कोरोना से 2 साल तो हो गए अभी कितना और लगा 2 से ज़्यादा हो गए हाँ 2019 में आया 1920 में आया 2 साल से ज़्यादा है 19 आप कहाँ थे जब कोरोना पहली बार हुआ तब कहाँ थे आप जब कोरोना हुआ चालू हुआ तब आप कहाँ थी दिल्ली में थी दिल्ली या गोवा में तो ये अब चाइना ने कोरोना भेज दिया एक ऐसा बॉम्ब जो कि चुप करके लोगों को मारता जाए काफ़ी लोग मरे हैं ये डिफरेंट किस्म का बॉम्ब है जो कि कोरोना एक है तो एक किस्म का बॉम्ब ही लेकिन ये नज़र नहीं आ रहा बॉम्ब ये तो बस ये ऐसी है कि एक दूसरे को टच करने से या कुछ करने से ये इंसान मर जाता है तो अब तो अजीब देखो इसके मुकाबले अमेरिका क्या करता है अब क्योंकि चाइना और अमेरिका की आपस में इतनी नहीं है अब वो क्या बनाता है Head to toe in protective suits, in an eastern district of the city, officers were forcing people out of their rented apartments.
so they could turn them into temporary quarantine facilities, all in the name of a war against a resurgent COVID. But for some it was just too much. Their homes sequestered, their desperation easy for all to hear. The world too is changing. A new era of war. A few miles away there was an organized protest. A war which is invisible. An increasingly multipolar world is emerging rapidly, challenging the hegemony of the United States. Today, our fellow citizens, our way of life, our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts. The victims were in airplanes or in their offices. Secretaries, businessmen and women, military and federal workers, moms and dads, friends and neighbors. Thousands of lives were suddenly ended by evil, despicable acts of terror. Now, some very, very sketchy details reaching us here at Sky Centre. Important enough to bring to you, though, at this early stage. We believe that a plane has crashed into the World Trade Center in New York. Right now we're getting information, Al, that it was a small commuter plane. And of course, we'll let people know as soon as we have more information as to what actually caused this. And of course, on everybody's mind, who might have been. हाँ दान सिंह, वो दवाइयाँ ज़रूरी चाहिए और 2 या 3 रिस्टोजाइम भी चाहिए। हाँ, क्योंकि फिर पैकिंग भी तुमने आज करनी है आके। अपना काम कर लो, साहब का काम जो करना कर लो, फिर आके मेरी पैकिंग करो और वो भी ले आना रिस्टोजाइम। कम 1 तो भी पूरा है, 2 और चाहिए। ठीक है बस ओके आ जाना। Mummy Ji was on a mission mode and personally supervised the packing of our bags. बच्चा होता है। अब बच्चों में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि तो कोई बच्चा बहुत ही ज्यादा मतलब जो है जिद्दी होता है ना, तो नानी जी एक छोटे बच्चे की जिद्दी के तरह और माँ बाप के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि बच्चे को कि ये कभी हम इसको कर पाएंगे इसकी मान की। हाल लिए होता है कि कभी अगर वो बच्चा खुश हो गया तो उसके पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं उस बात से कि आज तो बस हमने बहुत बड़ी जंग जीत ली। हमारे लिए नानी जी को खुश करना एक जंग जीतने के बराबर है। लेकिन आप मिस करोगे ना नानी जी को अगर चली गई तो? लेकिन सब बहुत मिस करेंगे और हम करते हैं। ऐसी बात नहीं, हमारे जो भी अपने कोई भी काम के कोई भी ऐसा पल होता है कि उसमें ऑटोमेटिकली नानी जी याद आ ही जाते हैं। नहीं तो कुछ तो ऐसे होता है कि जिसमें आदमी को बहुत नानी सलाहें भी इतनी अच्छी सलाहें देती हैं। मतलब अक्ल के मामले में नानी को ये सोच लो कि एक पीएचडी नानी जी ने कर रखी है। अगर कोई अगर आपको कोई चीज समझनी है तो सोचो कि उस समझाने में नानी जी के आगे डॉक्टर पहले ही लगा हुआ है। अब वो बिल्कुल रियल होता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता है कि मतलब हाँ नानी जी ने कुछ बनावटी बात बोली, उनके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उनकी समझ है और बहुत ही अच्छा, बहुत एक्सीलेंट। बस ये है कि जिससे समझा रहे हैं ना वो इस चीज को समझे जरा, क्योंकि नानी जी का जो समझाने का तरीका वो इस तरीके का है कि वो आराम से भी समझाते हैं और उसमें अगर कुछ एग्जाम्पल भी देने पड़े तो वो एग्जाम्पल भी देते हैं और इतने अच्छे से कि आदमी पे माइंड में वो चीज एक मोहर की तरह छप जाती है। और अब देखो एक बच्चा होता है, उसको कोई परवाह नहीं होती है कि ये टूट रहा है या गिर रहा है, उसके बाद छोड़ देता है वैसे। बुजुर्ग उन्हें थोड़ा इस चीज का ध्यान तो रहता है कि ये वेस्ट ना हो,
पर उसके बदले उनका क्या होता है कि वो भूल जाते हैं कल मैंने कहा रखा था। हाँ तो मतलब थोड़ा बस 19-20 का फर्क होता है, लेकिन रियलिटी वही है कि एक बुजुर्ग एक बच्चे की तरह होता है। एक खुशी की बात है कि बड़े नसीब की बात है कि हर किसी प्राणी को ये नसीब नहीं होता कि वो बिल्कुल अपने बचपन की अवस्था में दोबारा आ सके। इंसान कोई ना कोई बहाने से, कोई ना कोई कंडीशन में, कोई मुसीबत में वो पूरा बच्चा होने से पहले ही जो है बाय बाय कर जाता है। पर जो 90 एंड 100 या 100 के आसपास जो चल रहा है वो समझो एक बच्चा ही है। हाँ हेलो। हाँ 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 पूरी तैयारी होगी। देखो सफर कट लोगे कि नहीं, ये तो सब रब दे। सफर क्यों ना बैठना है 11 बजे और तुसी आ जाना, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ बैठना जूली 11:30 घरों निकलना है तो 4 बजे जाके प्लेन चलना है। 4 बजे प्लेन चलना है ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਤ ਹੀ ਜਾਣਾ। ना, पर अन्य घंटे पहले जाना। ਮੰਮੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ 10 ਦੇਖੇ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ कोरोना तो बाद। हाँ मैं जूली कमजोर बहुत आ, देखो ये सफर कट जावा ठीक है। नहीं ये जाएगी उधर, अच्छा लिफ्ट है ना। हाँ ये पूजा ये दरवाजे सब बिजली का बंद कर देना तो ठीक है दबरिया Finally, the D-Day had arrived. तो आप पहुंच गए एयरपोर्ट? बहुत बढ़िया आदमी है पंडित जी, और नानी जी का पूरा ध्यान रखना आप, व्हील चेयर वगैरह लेके और पूरा सामान का जुगाड़बाजी करके ना, ये हाँ मतलब ये आपकी लाइफ का सबसे मेजर काम है आज। On the way, we picked up Nandini ji, our fellow comrade in the mission. Oh, that's Ash. You are a part of my film now. Hi. Hi. Okay. Hi. Ashish is a photographer, girls. He's doing Auntie's biography. Oh wow. Yeah. एक्साइटेड थी अब मुश्किल से निकल रही हूँ। नहीं मुश्किल से क्यों, बोलो कि राजी खुशी निकल रही हूँ तो राजी खुशी सब हो जाएगा, है ना आशीष? एग्जैक्टली 4 घंटे यहाँ 4 घंटे वहाँ। नहीं अभी 4 नहीं है, अभी सिर्फ 2.5 घंटे है ना त्रिलोकी? The rest of the mission went without a hitch. आपकी बाइक को जल्दी कर देते ना। And thus, my 4-month-long journey with her ended.
I hope all our wishes and our desires are fulfilled.